Hello everyone. Today let's look at the line-by-line explanation of the chapter Discovering Tut. The saga continues from 11th class English book Hornbill, and this chapter is written by A.R. Williams. At first, let's look at the title. What does it suggest to us? The title is Discovering Tut. The saga continues. So now the question is, who is Tut? टट कौन है? सबसे पहले हमें ये जानना है. सो टट इज़ अ teenager Egyptian king who died some 3000 years ago, and actually he died mysteriously, so everyone wants to discover the reason behind his death, and a lot of tests and researches conducted in order to find out the reason of his death. That's why the title is Discovering Tut. टट एक इजिप्शियन किंग है जिनकी डेथ जो है बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, और ये लगभग 3000 साल पहले की बात है. और उनकी डेथ बहुत मिस्टीरियसली हुई, इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि डेथ के वक्त टट की एक्चुअल एज क्या थी और उनकी डेथ के पीछे रीज़न क्या था. तो इसलिए बहुत सारी डिस्कवरीज उनके ऊपर की गई हैं उनकी डेथ के रीज़न को जानने के लिए, और यही इस चैप्टर का टाइटल है, डिस्कवरिंग टट. Then the title is The Saga Continues. Saga means a long story. So the story of Tut is still continuing. People are still trying to find out the reason of his death. So the whole title of this chapter is Discovering Tut. The Saga Continues. In this lesson, we are going to know what discoveries had been done on Tut's death, and what are the ways that used by researchers and archaeologists to find out the reason of his death. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि टट की डेथ का रीज़न जानने के लिए किस तरह की डिस्कवरीज की गई हैं, और रिसर्चर्स ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने किस किस तरह के तरीक़ों का यूज इस बात के लिए किया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. ही मीन्स किंग टट. So King Tut was just a teenager at the time of his death. जब किंग टट की डेथ हुई उस वक्त वो एक टीनेजर ही थे. टीनेजर मीन्स अ पर्सन एजेड बिटवीन 13 एंड 19 ईयर्स ओल्ड. टीनेजर वो इंसान होता है जिसकी उम्र 13 से 19 के बीच में हो. सो किंग टट अपनी डेथ के वक्त एक टीनेजर ही थे. द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरी. सो दिस King Tut belonged to a royal family of Egypt, and that had ruled Egypt for many centuries, and he was the last ruler, the last successor of that family. King Tut जो है एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, और उनकी फैमिली ने लगभग बहुत सारी सेंचुरी से यहाँ पर रूल किया था, और अपनी उस रॉयल फैमिली की वो लास्ट उत्तराधिकारी थे. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. So the writer says he, that means that after his death he was buried and his tomb was filled with gold, but after that he was forgotten. So writer कहते हैं कि किंग की जब डेथ हुई, जब किंग टट की डेथ हुई, उस वक्त उनकी जो कब्र थी उसे गोल्ड से भर दिया गया. उन्हें जब दफनाया गया तो उन्हें गोल्ड के साथ दफनाया गया, लेकिन उसकी जस्ट बात उन्हें भुला दिया गया. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. So in 1922, for the first time his body, his tomb was discovered, and people started making guess about his death, and most of them believed that it was a murder. सो राइटर हमें बताते हैं कि 1922 में पहली बार उनकी टूम की डिस्कवरी हुई, पहली बार उनकी टूम को खोजा गया, और तब से मॉडर्न वर्ल्ड ने उनकी डेथ के बारे में स्पेकुलेट करना शुरू किया. दैट मीन उन्होंने उसके बारे में गैस करना, उसके बारे में अनुमान लगाना शुरू किया कि इनकी डेथ के पीछे रीज़न क्या हो सकता है. और अधिकतर लोगों को ये लगता था कि इनके डेथ के पीछे का रीज़न क्या है, मर्डर. दैट मीन्स किंग टट का मर्डर किया गया है. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death, and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. So for the first time in almost 80 years, his body was taken out from his tomb and the body underwent a CT scan.
Now imagine CT scan is usually done only for people to diagnose diseases. But here the mummies are also undergoing CT scan, and Tut's mummy was the first mummy to undergo CT scan. So लगभग 80 सालों में पहली बार हुआ था कि पहली बार टट की जो बॉडी थी उन्हें उनकी टूम से बाहर निकाला गया ताकि उनका CT स्कैन किया जाए। और CT स्कैन क्यों किया जाए? ताकि उनकी लाइफ और डेथ के बारे में कुछ नए क्लू मिल पाएँ, and it provides precise data for an accurate forensic reconstruction. Forensic reconstruction means using scientific method to find out the clues or whatever relating to the death of a person. So उनका CT स्कैन किया गया ताकि उनकी डेथ के बारे में, इस बॉयश फेरो के बारे में, फेरो मीन्स किंग, ओके, सो इस बॉयश फेरो मीन्स किंग टट, सो ताकि किंग टट की डेथ के बारे में साइंटिफिक तरीकों से डेटा कलेक्ट किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि उनकी जो डेथ है वो क्यों हुई है। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. So when his body was taken out of the tomb for the first time from Egyptian cemetery means where the mummy was kept, and that place is known as Valley of the Kings. So when his body was taken out for the first time, there was a strong wind and the sand was moving around like ghostly devils, and it looks like that nature was against it and it was angry. तो जब पहली बार किंग टट की बॉडी को उनके रेस्टिंग प्लेस, दैट मीन जहाँ पे उनकी कब्र थी, और उस एरिया को कहते हैं द वैली ऑफ द किंग्स, तो जहाँ पर उनकी कब्र थी वहाँ से जब उनकी बॉडी को पहली बार निकाला गया तो उस वक्त जो थी बहुत तेज़ी से हवा चलने लगी और जो सैंड थी, जो रेत थी, वो बहुत तेज़ी से डेविल्स की तरह ऐसा लग रहा था मानो कोई भूत जो है वहाँ पर घूम रहा है आसपास। तो वो जो डस्ट थी वो बहुत तेज़ी से यहाँ वहाँ उड़ने लगी और बहुत तेज़ हवा चलने लगी, और इस सब को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि जो नेचर है वो ये नहीं होने देना चाहता, नेचर नहीं चाहता कि किंग टट की बॉडी को उसके प्लेस से उठाया जाए। Dark belly clouds had skidded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. So dark belly clouds, that means dark huge clouds, बड़े बड़े काले बादल, had skidded across. Skidded across means the dark clouds were moving quickly across the sky during the day. दिन भर जो बड़े बड़े काले बादल थे वह आसमान में यहाँ वहाँ मूव कर रहे थे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, एंड नाउ दे वर कवरिंग द स्टार्स, और अब ये जो बादल थे ये जो सितारे थे, जो तारे थे, उनको ढक रहे थे इन कैस्केड ग्रे। कैस्केड एक्चुअली इट इज़ अ स्मॉल डेकोरेटेड बॉक्स for holding jewels or any other valuable things, so it is generally gray in color. So in that color, in उस जो कास्केट का एक जो कलर होता है उस कलर में अब ये जो बादल थे ये सितारों को, तारों को ढक दे रहे थे। It was 6 p.m. on 5th January 2005. The world's most famous mummy glided headfirst into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3000 years ago. So 5 जनवरी 2005 को लगभग 6 बजे किंग टट की बॉडी को टूम से बाहर निकाला गया, और उस वक्त जो नेचर था वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा था, बहुत तेज़ से हवा चल रही थी, आसमान में बहुत काले घने बादल थे। And the world's most famous mummy, that means King Tut's mummy, for the first time its head went to the scanner and then it followed by the body. तो पहली बार किंग टट की बॉडी को स्कैनर में डाला गया, पहले उनका सर को CT स्कैनर में डाला गया और उसके बाद उनकी बाकी बॉडी को। And why was this CT scan done? Because a lot of mysteries is still around about Tut's death, so they wanted to find out an answer of those mysteries. That's why the body was taken out for scanning. किंग टट की डेथ का रीज़न किसी को नहीं पता, और उनकी डेथ जो है वो लगभग 3300 ईयर्स पहले हो चुकी है, और इस किंग टट की, इस यंग रूलर की जो बातें अनसुलझी हैं, जो पहेलियां उनके बारे में हैं, ताकि उनका आंसर मिल सके, इसलिए ये CT स्कैन किया जा रहा था। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect.
So in the afternoon, usually tourists come and visit the tomb to have a look at the mummy. And this afternoon also many tourists had went down into that cramped rock-cut tomb, and that was some 26 feet underground. And in this way all tourists they were paying respect for Tut. सो यूजुअली वहाँ पर टट की टूम में लोग उनको विज़िट करने आते थे, लोग देखने आते थे मम्मी को। और इस आफ्टरनून भी जब टट की बॉडी को वहाँ से ले जाया जा रहा था, इस वक्त भी वहाँ बहुत लंबी सी लाइन थी टूरिस्ट की, और वो सारे टूरिस्ट उस छोटी सी क्रैम मीन्स नॉट हैविंग इनफ स्पेस, सो इस छोटी सी रॉक कट टूम, रॉक कट मीन्स रॉक से बनी हुई, सो इस छोटी सी रॉक कट टूम में जो कि लगभग 26 फीट नीचे थी, उसमें अभी भी एक बहुत लंबी सी लाइन लगी थी टूरिस्ट की। और ये सारे टूरिस्ट इस तरीके से वहाँ पर अपनी जो उनके मन में टट के लिए रेस्पेक्ट थी उसको शो कर रहे थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. So people who were visiting the tomb, they started looking at the murals. Murals means the pictures painted on wall, and they were also looking at Tut's gilded face. That means his face was covered with gold, and it was the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. सो जो भी लोग वहाँ पर आए थे वो उस बरियल चैम्बर में जहाँ पे उनकी टूम रखी हुई थी, उस चैम्बर में पहले म्यूरल्स को देख रहे थे। म्यूरल्स वो पेंटिंग होती हैं जो दीवारों पर बनाई गई होती हैं, और उसके बाद वो टट की गिल्डेड फेस को देख रहे थे। दैट मीन्स टट का चेहरा जो कि सोने से भरा हुआ था, एंड ये उनकी जो मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड था, दैट मीन्स की कॉफिन का जो ढक्कन था, जो लिड था, उसके ऊपर उनका जो चेहरा बनाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था। दैट मीन जो टट की कॉफिन थी, जो टट का ताबूत था, उसमें एक पूरी मम्मी शेप का एक पिक्चर बनाया गया था, और वो जो उस पर उनका चेहरा बना हुआ था वो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था उनकी टूम का। सम विजिटर्स read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him, was really true. So some people had some guiding booklet in their hands and they were reading it very slowly. जो लोग वहाँ पर आए थे उनमें से कुछ के हाथ में गाइड बुक्स थी, वो उसे बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे थे। And some people were just standing there and perhaps they were wondering about Tut's death before time. और कुछ लोग वहाँ पर सिर्फ खड़े थे बिल्कुल चुपचाप। शायद हो सकता है कि वो टट की उस अनटाइमली डेथ के बारे में सोच रहे हों। टट बहुत जल्दी मर गए थे, शायद वो इस बारे में सोच रहे हों, या फिर वो फ़ैरोज़ के कर्स के बारे में सोच रहे हों। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ़ैरोज़ कर्स। It is believed that pharaohs might have cursed the people that who will try to disturb him, he will face death or misfortune. So people, maybe they were thinking that nature is reacting in such manner. Wind was moving speedily, dark clouds were there on the sky. So maybe the reason behind it is the pharaoh's curse. सो एक फ़ैरो का कर्स है। ये माना जाता है कि राजा ने एक श्राप दिया हुआ है लोगों को कि जो भी उन्हें डिस्टर्ब करेगा उसको डेथ का या फिर मिसफॉर्चून का, दैट मीन्स दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। तो जो लोग वहाँ पर थे वो शायद ये भी सोच रहे थे कि मौसम जो है वो इस तरीके से ख़राब हो रहा है, नेचर जो है वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि जो फ़ैरो का कर्स है, जो किंग का श्राप है, वो सच हो। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. So Jahi Hawass is a person who is the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. So when he looked the body, he said that somebody named Carter did something to body in 1920s, and because of that the mummy is in very bad condition. So जाही हवस जो हैं वो इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के सेक्रेटरी जनरल हैं। जब उन्होंने पहली बार बहुत ध्यान से इस किंग की बॉडी को देखा तो उन्होंने कहा कि कार्टर एक अदर पर्सन का नेम है,
कार्टर ने जो 1920s में किया उसकी वजह से मम्मी की हालत जो है बहुत ख़राब हो गई है। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, that is was a British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. So who is Howard Carter? Howard Carter is a British archaeologist and he was searching for Tut's tomb for a long time, and finally in 1922 Howard Carter discovered his tomb. So Howard Carter एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो बहुत लंबे समय से टट की टूम को ढूंढ रहे थे और उनके बहुत सारे साल इसमें वेस्ट गए, बट फाइनली 1922 में वो इसको डिस्कवर कर पाए। और जाहिर हवस उन्हीं के बारे में कहते हैं कि हॉवर्ड कार्टर ने जो 1920s में टट की बॉडी के साथ किया, टट की मम्मी के साथ किया, उसकी वजह से अब इसकी हालत जो है बहुत ख़राब हो गई है। इस कंटेंट दो hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete. So when he discovered the tomb, he found out that it was totally messed, but everything inside it was complete. So जब उन्हें टूम मिली तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो भी सामान था, जो भी इसका कंटेंट था, वो बुरी तरीके से मैसी था, यहाँ वहाँ फैला हुआ था, प्रॉपरली अरेंज नहीं था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो पूरा था, उसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. So whatever items they have found that were buried with the tomb, it is supposed to be the richest royal collection. That means till now they have not found any such huge royal collection in other mummies, and that has become the part of pharaoh's legend. That means pharaoh's story. So जो भी चीज़ें उस टूम में उनको मिली वो अब तक की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था। दैट मीन्स आज से पहले इतना बड़ा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन कभी भी किसी भी मम्मी में नहीं मिला था, और ये उस फ़ैरो की लेजेंड के, दैट मीन्स उस किंग की स्टोरी का एक पार्ट बन गया। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused the sensation at the time of the discovery and still get the most attention. So all the artifacts, that means all the objects were there, they were made of gold. जितना भी वहाँ पर सामान था, जो भी उस टूम के साथ दफनाया गया था, वो सब गोल्ड से बना हुआ था। And their eternal brilliance, that means their shine, और उन चीज़ों की जो शाइन थी, that was so luminary that suggests that the person who is lying there, it could come back to life. So उन चीज़ों की जो चमक थी उसको देखकर ऐसा लगता था कि जो इंसान यहाँ पर लेटा हुआ है, दैट मीन जो डेड बॉडी वहाँ पर है, वो जो है दोबारा से जीवित हो सकती है इस इटर्नल ब्रिलियंस की वजह से। दैट मीन्स वो जो चीज़ें थी गोल्ड की वो बहुत शाइनी थी, और उनको देखकर ये लगता था कि दोबारा से ये जो इंसान है ये जिंदा हो जाएगा और इन सब चीज़ों का वो यूज़ करेगा। And when they found such kind of treasure, it became sensation, the talk of the town, and everybody wanted to see this treasure, and still people give the most attention to it. So जब लोगों को ये बात पता लगी कि जो वहाँ पर जो सामान है वो गोल्ड से बना हुआ है और वो इतना ज़्यादा रॉयल कलेक्शन है, तो एक सेंसेशन बन गया। और उस डिस्कवरी के टाइम पर भी और अभी भी लोग जो है उसको देखना चाहते हैं, और अभी भी उसकी टूम को और उस खजाने को जो कि उस टूम के साथ मिला था, उस पर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत ईगर रहते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए। बट Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. So along with his body there were so many things. There was not only gold but the things of day-to-day life, and that he would need after his death. सो उस टूम में ना कि सिर्फ गोल्ड था बल्कि उसके अलावा वहाँ पर एवरीडे लाइफ की भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी जो कि टट अपनी आफ्टर लाइफ में यूज़ कर सके। और चीज़ें क्या थीं? वो थी बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन के अंडरगारमेंट्स और फूड और वाइन के केसेस। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. So at first
कार्टर मेड अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस फ्यूनरी ट्रेजर। कार्टर ने सबसे पहले एक रिकॉर्ड बनाया, जो भी चीज़ें टट की बॉडी के साथ दफनाई गई थी, जो भी ट्रेजर वहाँ पे था, उन्होंने इसका रिकॉर्ड बनाया और इसमें उन्हें बहुत मेहनत लगी। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन and he started investigating his 3 nested coffins. That means there were 3 layers in his coffin. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. So at first, when he opened the coffin, at the first layer he found a shroud. सबसे पहले उस कॉफिन को खोलने पर उनको एक श्राउड मिला। श्राउड इज़ अ काइंड ऑफ क्लोथ दैट वी यूज़ टू कवर द डेड बॉडी। श्राउड जो है डेड बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ किए जाने वाले कपड़े को कहते हैं, और इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड कफन। सो उसमें एक कफन था जिसको विलो और ऑलिव लीव्स की माला से सजाया गया था, और इसके साथ में वहाँ पर वाइल्ड सैलरी थी, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लांट, लोटस पेटल्स थे, कमल के फूल की पंखुड़ियाँ थी, एंड कॉर्नफ्लावर्स थे और गोभी थी। So all these things they were a sign that this burial took place in March or April. और ये सारी चीज़ें जो उनको कफन के साथ मिली, इसको देखकर ये लगता था कि ये जो बरियल था ये मार्च या अप्रैल के टाइम पर हुआ था, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी वक्त पाई जाती हैं। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. So after investigating all these things, he finally got the mummy, the body of Tut, but when he came to the point, there was some kind of trouble. So at last जब कार्टर टट की बॉडी तक पहुँचे, वहाँ पर उन्हें कुछ परेशानी हुई। एंड वट वॉज द प्रॉब्लम? द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। ओके, सो जो रिचुअल रेजिन था, रेजिन इज अ काइंड ऑफ स्टिकी सब्सटेंस। सो एक स्टिकी चीज़ होती है रेजिन्स, और रिचुअल्स में इसका यूज़ इजिप्ट में किया जाता था। तो जो रिचुअल रेजिन्स था, जो उसके बरियल के टाइम पर उन्होंने स्टिकी सब्सटेंस यूज़ किया था, दैट बिकेम हार्ड एंड नाउ हिज बॉडी वाज स्टिक टू हिज गोल्ड कॉफिन। वो जो रेजिन था वो इतना ज़्यादा हार्ड हो गया था कि टट की जो बॉडी थी वो उसके कॉफिन के साथ चिपक गई थी, सीमेंटेड हो गई थी। No amount of legitimate force could move them, Carter wrote later, what was to be done. So whatever force was applied to it, it was futile, and Carter was not able to took out the body out of coffin. And Carter was also recording his investigation, making notes. So at one point he wrote, what could be done now. सो उन्होंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, जितना भी फोर्स वो लगा सकते थे उन्होंने वो लगाने की कोशिश की, जितना भी जायज़ फोर्स वो लगा सकते थे उन्होंने वो लगाने की कोशिश की, लेकिन उस कॉफिन से वो उस बॉडी को अलग नहीं कर पाए। और उसके बाद कार्टर एक रिपोर्ट में लिखते हैं कि इसके बाद क्या किया जाना चाहिए था। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथर्न इजिप्ट। So he is saying that in Egypt it is so hot there that it can beat you like a hammer. So राइटर कहते हैं कि जो इजिप्ट में सूरज की जो धूप पड़ती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर होती है, और अगर आप धूप में खड़े हो जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई हैमर से, कोई हथौड़े से मार रहा है। And Carter tried to use it to loosen the resins. So what the Carter did, he tried to keep the body out in the sun to make the resin loose. So Carter ने टट की बॉडी को, उस कॉफिन को उठा के धूप में रख दिया ताकि वो जो स्टिकी सब्सटेंस है, वो जो रेजिन है, वो गल जाए और थोड़ा सा लूज हो जाए। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. So Carter kept it in the shining sunshine for many hours and the temperature was about 149 degree Fahrenheit. So बहुत देर तक उन्होंने उस मम्मी को बाहर तेज़ धूप में रखा और उस वक्त जो वहाँ का टेम्परेचर था वो लगभग 149 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर था। नथिंग बस्ट, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। नथिंग मूव्ड, वो जो बॉडी है वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिली। द बॉडी हैड रियली हार्ड एंड इवन द अमाउंट ऑफ हीट कुड नॉट मेल्ट द रेजिन्स। वो जो बॉडी थी वो जो रेजिन था वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था और वो रेजिन बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ उतनी तेज़ धूप से भी। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains.
So after that, Carter reported with scientific detachment. Scientific detachment means he had tried so many scientific methods, but he failed. Now he was trying to use any other method. And he said that this consolidated material, that means this resin that has become so hard, it had to cut out using a kind of knife from below the limbs and trunk. सो कार्टर ने बहुत सारे तरीके, साइंटिफिक तरीके यूज़ कर लिए थे उस बॉडी को कॉफिन से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो सब में फेल रहे। तो अब वो कोई और तरीका यूज़ करना चाहते थे। तो साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है, दैट मीन्स जो रेजिन है जो ये हार्ड हो गया है, इसे हमें काट करके, चीजल अवे, इसे हमें काट करके बाहर निकालना होगा। कैसे बाहर निकालना होगा? एक छेनी, एक टूल होता है जो कि काटने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कार्टर ने ये कहा कि उस नाइफ का, उस एक छेनी का हम यूज़ करेंगे और उस बॉडी के और इस ट्रंक के बीच में से हम इसे काटेंगे और बाहर निकालेंगे। ट्रंक मीन्स वो जो कॉफिन है। सो कार्टर ने ये कहा कि अब हम इसे काट करके इस ट्रंक से अलग करेंगे और तभी ये जो बॉडी है ये बाहर निकल पाएगी। In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. So obviously this method was not so good. जो कार्टर ने आइडिया दिया था ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। So in his defense he had really very less choice. अपने आप को बचाने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा choices थी नहीं। So he said that if he had not cut the mummy, thieves would have come to know about this treasure and they would have cheated the guards and they would have torn it apart to take away the gold. So कार्टर ने ये कहा कि अगर वो इस बॉडी को इस टूम से अलग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो थीव्स, जो चोर हैं, उन्हें इस बारे में पता लग जाएगा और वो ये जो गार्ड्स हैं जो कि इस टूम की सिक्योरिटी के लिए रखे गए हैं, इनको धोखा दे देंगे और आराम से वो इस बॉडी को इस टूम से अलग कर लेंगे और गोल्ड के लिए वो इसे यहाँ से ले जा लेंगे या फिर इस बॉडी को वो टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे। He is saying that if he did not do it, somebody else have done it. कार्टर ये कहते हैं कि अगर मैंने इस बॉडी को काट कर अलग नहीं किया होता तो कोई और कर लेता, चोर ऐसा कर लेते, तो इससे तो बेटर है कि मैंने ही ऐसा कर लिया। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. So that is some 3000 years ago, and at that time the kings, they were fabulously wealthy and they were extremely rich, and they believed that when they died they could take all their riches with them. So टट के टाइम पर जो रॉयल्स थे बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत ज़्यादा वेल्दी थे और वो ऐसा सोचते थे या उनको ऐसी उम्मीद थी कि अपने मरने के बाद उनकी जो ये प्रॉपर्टी है, जो भी उनकी प्रॉस्पेरिटी है, जितना भी पैसा, रिचेस जो भी उनके पास हैं, ये सब वो अपने मरने के बाद अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। किंग टट वॉज lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, threads for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. So at the time of King Tut's burial, he was lavished with very shiny and very expensive things and that were very large in quantity. सो जब किंग टट को दफनाया गया तो उनके साथ बहुत ज़्यादा शाइनी सामान उनके साथ में रखा गया था, जिसमें बहुत प्रीशियस कॉलर्स थे, कुछ नेकलेसेस थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थी, एमुलेट्स थे, दैट मीन्स तावीज़ थे, सेरेमोनियल एप्रन था, ऐसा एप्रन जो किसी फंक्शन में पहना जा सके, सैंडल्स थे और उनके फिंगर्स और टोज़ के लिए एक तरह के कवर उनके उस टूम में रखे हुए थे और कॉफिन और मास्क, और ये सारी चीज़ें दे ऑल वर मेड ऑफ गोल्ड, ये सारी चीज़ें गोल्ड से बनी हुई थी। तो उन किंग्स को ये लगता था कि वो अपनी सारी रिचेस को अपने साथ ले जा सकते हैं अपने मरने के बाद, तो उनके टूम में उनके साथ ये सारी चीज़ें दफनाई जाती थी ताकि आफ्टर लाइफ, ताकि अपने डेथ के बाद वो इन सब सामानों का यूज कर सकें। To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major point. So in order to separate Tut's body from all these decorative things, they had to chisel it away, and at first they removed its head and then broke away all major joints at the body. So टट की बॉडी को इन सारी डेकोरेटिव चीज़ों से, इन सारे आभूषणों से, इन सारे एडॉर्नमेंट्स से अलग करने के लिए कार्टर के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले उस मम्मी के हेड को अलग किया
और उसके बाद जितने भी मेजर जॉइंट थे उनकी बॉडी के, उन सबको अलग अलग करके निकाला गया। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bat where Tut now rests. After cutting out the parts of the body, they studied it, and after studying, they reassembled it in a box. They put a layer of sand below, and on that, they kept the body. They assembled the body, and they also put some padding on it, maybe a cloth or some covering on it, to hide the damage that they did to the body. And then they put it to the place where now Tut rests. सो एक बार जब उन्होंने इस बॉडी को अलग अलग करके निकाल लिया और इसकी पूरी तरीके से उन्होंने स्टडी कर ली, उसके बाद उन्होंने इसे दोबारा से रीअसेंबल किया। इन्होंने एक इसे वुडन बॉक्स में रखा। उस वुडन बॉक्स में पहले एक सैंड की लेयर रखी गई और उसके बाद उस सैंड की लेयर के ऊपर इन सारे पार्ट्स को, सारी बॉडी पार्ट्स को रखा गया और रिसेंबल कर दिया गया, दोबारा से वैसे ही रख दिया गया जैसे कि वो पहले थे। और उसमें इसके साथ में उन्होंने कुछ पैडिंग भी डाल दी ताकि वो उस डैमेज को छुपा पाएँ जो कि उन्होंने किया था। ऑब्वियसली उन्होंने उस बॉडी को काट के बाहर निकाला था, सारे पार्ट्स अलग कर दिए थे और उसकी वजह से इस बॉडी को, टट की जो बॉडी थी, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। तो उस डैमेज को छुपाने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक तरह की पैडिंग कर दी, कुछ कवर उसके ऊपर डाल दिया या कुछ सामान रख दिया। और तब से अब तक ये जो टट की बॉडी है ये वहीं पर है जहाँ पर ये अभी भी रेस्ट कर रही है। दैट मीन्स उन्होंने वापस से इसे उस प्लेस पर जाके रख दिया जहाँ पर अब टट की वो टूम है। So this was the explanation of the first part of the chapter Discovering Tut. The saga continues. We will cover the remaining part in the next video. Till then, stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.